کہ اس سال عرس کی جو تقریبات ہیں کرونا کی وبا کو اور اس کے پھیلتے ہوئے ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے ہم نے محدود کر دی، کیونکہ بنیادی جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ ہم کوئی ایسی فیل میں حصے دار نہ بنے جس سے کہ کوئی خاندان متاثر ہو جائے۔ بچے مستورات آتے ہیں، طویل سفر کر کے آتے ہیں اور وہ اس مرض میں مبتلا نہ ہوں۔ میں نے درخواست کی ہے جماعت غوثیہ سے کہ آپ جہاں جہاں ہیں اپنے اپنے اضلاع میں، اپنے اپنے تعلقوں میں، اپنی تحصیلوں میں، اپنے گوٹھوں میں، چاہے پنجاب کے عقیدت مند ہیں، سندھ سے تعلق رکھنے والے ہیں، بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ہیں، KPK کے آزاد کشمیر تک جو لوگ ہیں، وہ اپنے اپنے ہاں عقیدت، ان کو ذرا خاموش کریں، وہ اپنے اپنے علاقوں میں عقیدت کی محفلیں ضرور سجائیں، لیکن محتاط انداز سے، تاکہ وہ بھی متاثر نہ ہوں اور ان کے گھر والے بھی متاثر نہ ہوں۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کو جلد از جلد درست فرمائے، تاکہ آنے عرس جو شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا کا ہو، اس وبا سے ہمیں نجات مل چکی ہو، پوری دنیا کو نجات مل چکی ہو، اور ہم اپنی روایات کے مطابق عرس کو اس شایان شان طریقے سے منعقد کر سکیں جیسے ماضی میں کیا کرتے تھے۔ تو میں افسردہ بھی ہوں کہ ہمیں یہ محفل مختصر کرنی پڑی SOPs کو سامنے رکھتے ہوئے، اور دعاگو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آپ کے گھر کو، گھر والوں کو، سب کو محفوظ رکھے۔ شکریہ۔ شکریہ۔ UAE گئے، آپ کا دورہ تھا، وہاں سے آئے، کیا جن چیزوں کے لیے گئے تھے ویزوں کے حوالے سے جو پابندیاں ہیں وہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ جی، میں ابھی لوٹا ہوں UAE سے، اور وہاں مجھے موقع ملا جو دبئی کے حکمران ہیں شیخ محمد بن راشد ال مختوم، ان سے ملاقات کا، کیونکہ دبئی میں، شارجہ میں، فجیرہ میں سب سے زیادہ کنسنٹریشن ہے پاکستانیوں کی، ان کی اکثریت وہاں رہتی ہے اور وہاں روزگار اپنا کماتی ہے۔ مجھے ان سے موقع ملا دو طرفہ تعلقات پر اور جو ان کی مشکلات ہیں ان پر تبادلہ خیال کا۔ مجھے ابوظہبی میں شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان جو وزیر خارجہ ہیں UAE کے، ان سے ایک طویل نشست کا موقع ملا، جس میں ویزا ایشو کے ساتھ ساتھ میں نے دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ میں نے انہیں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر انہیں آگاہ بھی کیا اور اعتماد میں لیا۔ میں نے افغانستان کی جو حالیہ ڈیولپمنٹس ہیں، جس میں ابھی طالبان کا ایک وفد بھی آیا تھا، ان کے ساتھ جو تبادلہ خیال ہوا اور جو نکتے سامنے آئے وہ ان کی خدمت میں گوش گزار کیے، اور میں نے جو ہمارے دو طرفہ تعلقات ہیں ان میں مزید وسعت اور گہرائی کیسے آ سکتی ہے اس پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وہ سمجھتے ہیں پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات کتنے گہرے اور کتنے درینہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ یہاں میں نے دیکھا ہے مختلف لوگ کیا سرائیاں کرتے ہیں۔ میں اس ابہام کو دور کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ویزا کی بندش ہے یہ عارضی ہے اور جلد انشاءاللہ دور ہو جائے گی، نمبر ایک۔ نمبر دو،
मैं वाजे कर देना चाहता हूं कि यूएई हो या सऊदी अरेबिया हो, वो हिंदुस्तान को पाकिस्तान का मुतबादिल नहीं समझते। अगर हिंदुस्तान की ये ख्वाहिश और कोशिश है कि वो पाकिस्तान पर उनको फौकियत देंगे और कोई चॉइस एक्सरसाइज करेंगे, तो ये उनकी गलत फहमी है। और वो जो मेरी तवक्कुआत थी, अल्हम्दुलिल्लाह उन नशिस्तों में वो मेरी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक हमारी गुफ्तगू हुई। हमने ये भी फैसला किया कि इंशाअल्लाह वो अनकरीब पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। मैंने इनको दावत दी है और मजीद जो बात है वो आगे बढ़ेगी। मैं अर्ज करना चाहता हूं, मुझे मौका दीजिए, मुझे पता था सवाल आएगा आपका। इसराइल के बारे में उनका जो मौक़िफ़ है और वो उन्होंने इक़दामात क्यों उठाए, मैंने समझा और सुना। मैंने उनकी खिदमत में पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े तौर पर पेश किया कि पाकिस्तान किसी सूरत इजराइल के साथ वो ताल्लुकात कायम नहीं कर सकता जब तक कि मसला फ़लस्तीन पर कोई देरपा और मुस्तकिल हल ना निकल सके। मैंने उन्हें पाकिस्तान की आवाम के जज्बात और फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले में जो मुमासलत है उनसे आगाह किया। और आपको ये सुनकर इत्मीनान होना चाहिए कि उन्होंने हमारे मौक़िफ़ को पूरी तरह समझा। और ये आपका सवाल इतना पुराना हो चुका है और इसका जवाब इतना वाज़े हो चुका है, वज़ीर आज़म दे चुके हैं, मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, दफ्तर ख़ारजा का बयान आ चुका है कि हम पर किसी का प्रेशर नहीं है। आपको इत्मीनान कब होगा और कैसे होगा मुझे बता दीजिए, मैं उन्हीं अल्फाज में आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। नंबर एक, हम पर कोई दबाव नहीं होगा, ना है। नंबर दो, हमने पाकिस्तान के मफादात को सामने रख के फैसले करने हैं, किसी दबाव के तहत नहीं करने। हमारी एक पॉलिसी है और हम उस अपनी पॉलिसी पर आज भी कायम हैं। जी भारत जो है उसने यूक्रेन की गाड़ियों पे भी हमला किया और फाल्स ऑपरेशन के लिए कुछ ममालिक से भी कह रहे इजाज़त मांग रहा है। अगर वो इस तरह का कुछ इक़दाम करते हैं तो पाकिस्तान किस तरह जवाब? भारत ने हमेशा कोशिश की है, पाकिस्तान को जब भी मौका मिला ज़ख्म पहुंचाने की कोशिश की है। पिछले दिनों में, बल्कि मैं तारीख बता देता हूं, 14 नवंबर को दफ्तर ख़ारजा में मैंने और DGISPR ने एक डॉसियर कौम के सामने और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखा, जिस डॉसियर में हमने सबूतों के साथ, इररिफ्यूटेबल एविडेंस जिसको कहते हैं, उसके साथ दुनिया को बावर कराया कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। वो ऐसे अनासिर की पुष्पनाही करता है, उनको मटेरियल फराहम करता है, उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है, उन्होंने अपनी सरजमीन में कैंप्स कायम कर रखे हैं और गिरदोनवा उनको जहां मौका मिलता है वो वहां की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। ये डॉसियर हमने P5 के ममालिक के साथ, सलामती काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनके साथ, OIC के जो अहम ममालिक हैं उनके साथ भी शेयर कर दिए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की खिदमत में अपने डॉसियर के जो अहम नुकात हैं उनकी खिदमत में भी पेश कर दिए हैं। नंबर एक। नंबर दो, आपके इल्म में है कि पिछले दिनों यूरोपियन यूनियन ने, आप गुफ्तगू बंद करेंगे, मैं बात कर लूं। यूरोपियन यूनियन ने एक EU डिसइंफो लैब के इंकशाफात और रिपोर्ट शाया की है, जिसको इंडियन क्रॉनिकल के नाम से दुनिया में आज जिसका जिक्र हो रहा है। और उसमें साबित हो गया है कि भारत जाली NGOs के जरिए, जाली सोशल मीडिया पे वेबसाइट्स के जरिए और जाली
इनफॉर्मल पार्लियामेंट्री ग्रुप्स के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की, पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश कर रहा है। और ये इनकी एक तवील मनसूबाबंदी के तहत हो रहा है, जो अब बेनकाब हो गई है। पाकिस्तान ने नहीं की, यूरोपियन यूनियन ने की है, और वो मजीद तहकीकात कर रही हैं। भारत का असली चेहरा उस डॉसियर के जरिए और इंडियन क्रॉनिकल्स के जरिए बेनकाब हो गया। अब ये भी हमारी इतलात हैं, और मेरे साथ पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने मालूमात शेयर की हैं। और मैं अबू धाबी में था जब मेरी गुफ्तगू हुई और नई इतलात मुझे मौसूल हुई, तो मैंने फिलफौर मौका ज़ाय किए बगैर वहीं अबू धाबी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इंटरनेशनल मीडिया मौजूद था। और उसका मकसद ये था भारत को एक वाज़ेह पैगाम देना। और भारत को वाज़ेह पैगाम ये था कि जो आप करना चाह रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक और किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बहाना जो आप तलाश कर रहे हैं, हमारे इल्म में है। हमारे इल्म में आपकी इतलात से ज़्यादा मालूमात हैं। आप ये अहमकाना हरकत न कीजिए। अगर आपने कोई ऐसी